today we will talk about the principle of collective responsibility, oath of office and secrecy. यानी कि हम आज आर्टिकल 75 के बारे में बात करेंगे. Hello guys, I am your host. Always, I am trying my best to give my all information and data I have analyzed to you with a sufficient manner. So, shall we start? Now we will start with the table content. First of all, we will write introduction with collective responsibility of ministers, ministers' individual responsibility, feature of cabinet collective representative मतलब जो भी है and case study and conclusion. बीच में हम इसके बारे में ओथ एंड ऑफिस के बारे में भी लिखेंगे लाइक कैसे मतलब ओथ दी जाती है और सैलरी एंड अलाउंस के बारे में और आर्टिकल 75 के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे. आर्टिकल 75 सब सेक्शन 3 के बारे में भी बताएंगे. बेसिकली ये क्वेश्चन एचपीयू के उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से आता ही आता है. ये मे बी आएगा शॉर्ट नोट या विद केस स्टडीज के लिए आ जाएगा. सो नाउ आई विल टॉक and start with the introduction. So, first of all, we start with the introduction. The principle of collective responsibility is the basic principle of parliamentary form of government. The essence of parliamentary system of government is its responsibility to the legislature. The precept of collective responsibility to the legislature. The principle of collective responsibility is present under 75 subsection 3 of the Indian Constitution, which deal with the special provision of this principle. So, what do you mean by collective? Collective यानी इकट्ठे, like the council of ministers is उनके ऊपर आती है वो ही जिम्मेवारी जो वो काम करते हैं. लाइक वो डूबेंगे भी साथ में और बनेंगे भी साथ में. अगर कोई ऐसा फैसला वो ले लेते हैं जिसमें जनता को अच्छा ना लगे और गवर्नमेंट गिरने की तरह आता है, डिसॉल्व हो जाए, लाइक दे आर इन ए बोट इन विच दे कैन swim and like sink. That's it. So first of all we have to talk about like the principle of collectivity क्या होता है, and then we will say that कि article 75 subsection 3 में provide किया गया था council of ministers shall be put together accountable to the लोक सभा. उनको जवाबदेही होना पड़ेगा लोकसभा के लिए. The rule of collective responsibility explain that the council of ministers is to be a body responsible to the Lok Sabha for the conduct of affairs of government. The Council of Ministers work as a team and design decision taken by the cabinet as a joint decision of it. मैंने पहले ही बता दिया कि हाँ भाई जो कहा गया है कि हम चलेंगे भी साथ में, डूबेंगे भी साथ में और तैरेंगे भी साथ में. अगर लंका डूबी तो सारी डूबेगी, बची तो सारे बच जाएंगे. We are talking about the collective responsibility like definition, oath of office and secrecy. First of all, I will tell you about that after the disqualification of members of parliament, we will talk about the oath of the office and secrecy. तो उसके लिए कुछ प्रोविजन है, मैंने इसमें नहीं लिखे बट स्टिल यू हैव टू नो अबाउट दैट. टू वियर ट्रूथ फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, टू uphold the sovereignty and integrity of India, to faithful and constitutionally discharge the duty of his office and to do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear and favor, affection or ill will. So first of all क्या आपको अपने काम के लिए दृढ़ होना चाहिए. सच्चे मन से आप अपने काम को करोगे विद एलिगेंस, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह कर करोगे. आपको सॉवरेनिटी दी गई है, इंटीग्रिटी कि आप एक इंडियन नागरिक हो तो आपको अपहोल्ड करनी पड़ेगी. इधर टू फेथफुल रहना पड़ेगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और डिस्चार्ज ड्यूटी. जो भी आपको काम है, जो आपकी ड्यूटीज है वो आपको डिस्चार्ज यानी करना ही पड़ेगा और अच्छे मैनर्स में करना चाहिए जिससे कि पीपल लाइक लोग जनता कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर मतलब फेवर और किसी अफेक्शन के मतलब कि आप जनता की आप मदद करो बिना किसी लाइक किसी के प्रति प्यार एंड ऑल, लाइक कि वो मेरा रिश्तेदार है तो मैं उसको दूंगा एंड ऑल. नो, फॉर यू यू आर अ लीडर ऑफ हिज सिविलियंस, तो तुम्हारे लिए सब एक बराबर है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सैलरी एंड अलाउंस. The fundamental principle underlying the working of parliamentary system of government is the principle of collective responsibility.
Article 75 clarifies states that the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. This means that all the ministers own joint responsibility to the Lok Sabha for all their act of commission and the commission. They work as a team and swim or sing together. Like जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम में चल रहा है गवर्नमेंट में, वो प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसीलिए एचपीयू में ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट शुड नॉट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ collective responsibility and deadlock. They are most important question after the disqualification and qualification of the member of parliament. तो आर्टिकल 75 सीधा कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा लोकसभा के लिए, ना कि वो राज्यसभा के लिए. वो अकाउंटेबल सिर्फ लोकसभा होगी उसके लिए. मीन्स दैट जो भी ऑल दी मिनिस्टर है जो ज्वाइन करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा फॉर ऑल देयर एक्ट और कमीशन, जो भी कमीशन करेंगे जो भी वो कमीशन का आएगा भी करेंगे भी, दे वर्क एज ए टीम लाइक दे स्विम और सिंग टुगेदर. अगर वो रिस्पॉन्सिव काम करेंगे तो उनको सभी को मिलके करना पड़ेगा. अगर आप नहीं करना चाहते तो यू कैन रिजाइन. इवन प्राइम मिनिस्टर कैन यूज हिज पावर टू टेल द प्रेसिडेंट दैट पर्सन इज नॉट गुड फॉर दैट पोजीशन. तो वो जाके प्रेसिडेंट आपको निकाल सकते हैं. बट उसका भी एक प्रोविजन है कि भाई क्यों निकाल रहे हो और क्यों नहीं. अगर आप एक majority will not, you are the one person in the cabinet who oppose this, so you have no right कि आप उसी पार्टी में रह के आप बिल को अपोज करें. आपको पहले उस पार्टी से रिजाइन देना पड़ेगा. एज ए ओपोजिशन आप कर सकते हो, बट उसी पार्टी में रह के अगर आप थाली में शेड करना चाहो तो ये इम्पॉसिबल है आपके लिए. ये जो टर्म है कलेक्टिव कहती है कि everyone the minister within the council of ministers should swim together or stand or fall together, whatever is the personal difference of opinion within the cabinet. But once decision has been taken by it, it is the duty of each and every minister to adhere by it and support it both in the legislature. तो मैंने पहले बता दिया कि भाई अगर आप एक कैबिनेट के मिनिस्टर हो, लाइक ये सीतारमण ने और मोदी जी ने कोई बिल पास किया, बट शी इज नॉट एग्री विद इट, बट वो सामने से नहीं कर सकती सीधा कि भाई मुझे तुम्हारा नहीं पसंद है. मोदी जी भी लाइक भाई रिजाइन दे, ऑपोजिशन में जा और अपोज कर, क्योंकि मेरे पास अभी सारी पावर है तो मैं ही करूंगा. तुम्हें रखना है, देखना है, नहीं अच्छा लग रहा तो जाओ. लाइक द फार्मर बिल ऑपोजिशन वाज लाइक, अगर वो बिल तभी आया है अगर वो मेजोरिटी से आया था, तभी बिल पास हुआ है. नहीं तो प्रेसिडेंट, अगर बिल मेजोरिटी से आता है तो प्रेसिडेंट तो साइन करना ही पड़ता है ऑब्वियसली. अब आप लोग बिल पास ना करने देते तो अलग बात थी. चाहे हाँ सिविलियन जो भी है वो जितना मर्जी दंगे फसाद कर ले, जो मर्जी कह ले सरकार को, बट वी स्टिल नो it is in the favor of a civilian like of our farmers. So अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम भाई गद्दी छोड़ दो और सामने से जाके इंडिपेंडेंटली लड़ो या किसी और पार्टी को ज्वाइन करके ऑपोजिशन में करो. तुम घर में बैठ के भविष्य नहीं बन सकते हो. तुम्हें लेजिस्लेचर में भी करते हो और आउटसाइड में भी. इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कैबिनेट मेंबर्स टू हैव इन लाइन रिस्पॉन्सेस विद द रेस्ट ऑफ द कैबिनेट members, and this effort will result to the principle of collective responsibility. Like अगर आप मेजोरिटी से करते हो, मिलजुल के टीम वर्क करते हो, तो ये प्रिंसिपल आ जाता है इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का. अगर आप इंडिविजुअल करते हो, लाइक अगर आपने कोई कांड किया, लाइक सिंपल आपने कोई ऐसी क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया जिससे कि भाई जनता होगी ऑफेंड, बट ये सारा दोष भाई तुम पूरी कैबिनेट पर नहीं लगा सकते, क्योंकि तुमने अकेले नहीं किया. तो वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. तो वो मिनिस्टर की इंडिविजुअल होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो हम उसके लिए आगे बात करेंगे. स्टिल वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अगर अगर काम टीम वर्क पूरा करते हो, आपको नहीं मानना फिर भी आप मान रहे हो, तो भाई आपको इसकी जिम्मेदारी पूरी सभा के सामने, पूरे देश के सामने लेनी पड़ेगी, चाहे आप इस बिल से खुश थे कि ना खुश थे. यू कांट अपोज योर ओन पार्टी जो मेजोरिटी में है और जो गवर्नमेंट में है. इस पार्टी लाइक पार्लियामेंट में है, अगर कैबिनेट में 5 मंत्री है और 4 मान रहे हैं और एक नहीं मान रहा, तो दे डोंट गिव अ फक पॉलिटिक्स में. सो आगे हम कहेंगे so we can say or define collective responsibility as या तो रिजाइन दे दे या तो प्रेसिडेंट से निकलवा दे कोई रीजन देके. publicly support the decision made by the government decision and agrees it.
कि तुम जिस लाइक हम अपने पेरेंट्स के विरुद्ध नहीं जाते, वैसे ही अगर तुम एक कैबिनेट मिनिस्टर हो फॉर्म सफिशिएंट और वैलिड गवर्नमेंट के, तो तुम्हें भाई पब्लिकली उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, बिल चाहे जैसी भी हो, क्योंकि बिल पास हो चुका है, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है, चाहे वो गवर्नमेंट के तुम्हारे हित में हो या जनता के हित में हो, किसी के भी हित में हो, चाहे कितना भी अपोज हो जाए, तुम नहीं बोलोगे उसके खिलाफ। द पॉलिसी, द प्रोग्राम और एनी अदर स्कीम or in cabinet supported by the each minister till they are present in the cabinet। मतलब जो पॉलिसी होगी, प्रोग्राम होगा, जो भी अदर स्कीम जो कैबिनेट ने दी है कि ईच मिनिस्टर को टिल दे आर प्रेजेंट होते हैं कैबिनेट में, लाइक पार्लियामेंट में जो भी लोकसभा है, लाइक ऐसे द प्रिंसिपल of collective responsibility doesn't mean that the all minister must take active participation in that formulation or should be present at the time of decision, but nowadays because of the size of the cabinet is very large। ये जरूरी नहीं है कि भाई अगर तुम लोग 500 हो तो तुम लोगों को 500 ही आना पड़ेगा भाई। वी डोंट हैव द सिंपल मेजोरिटी लाइक 50+1, अगर 150 बंदा है तो उसका हाफ करके 1+1 करें। स्पेशल मेजोरिटी में कुछ है कि 2/3 वाला लाइक ऐसे, ये उस पे चलेगा कि नहीं, जो आया है उससे ऊपर ही चलेगा, क्योंकि हमारी लोकसभा का जो भी है वो साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। In other words, it is said that the principle of collective responsibility for every decision taken by the Council of Ministers, they are respondent to the legislature. Therefore, the principle of collective responsibility is necessary and can be seen with the help of few case law. Like we will say, like, हाँ भाई हमने इकट्ठे नहीं किया है तो हम इकट्ठे ही मानेंगे। अगर तुम लोग ये बोलो कि भाई 4 ने किया और तू नहीं मान रहा था, तो तू ये नहीं कह सकता कि मैंने मना किया था फिर भी ये कर रहा है। बट व्हेन द मेंबर ऑफ 5 पर्सन लाइक कैबिनेट मिनिस्टर ने सपोर्ट कर दिया, तुम चाहे मन से करो ना मन से करो, तुम जवाबदेही हो जाते हो किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए और उसके लेजिस्लेचर के लिए, और तुम्हें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तुम ये एक पर नहीं डालोगे ये इसका आइडिया था, ये फेल हो गया। अगर फेल हो गया तो यू विल एक्सेप्ट दैट कि हाँ भाई हमने गलत किया, हम इस बिल को वापस लेना चाहते हैं, अमेंड कर देना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सिटीजन, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि वो सोच रहे हैं कि नहीं हमारे साथ धोखा हुआ है, ये बिल अच्छा नहीं है डो। तो हम इसके बारे में केस पढ़ते हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगी। मतलब हम केस के बारे में बात कर रहे थे, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1999। इसमें कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के मीनिंग बताया गया। इसके दो मीनिंग है कि भाई जब तुम जो भी कुछ पास करोगे उसको आपको अनएनिमस इन सपोर्ट ऑफ पॉलिसी देना पड़ेगा कैबिनेट मिनिस्टर को। और दूसरा ये है कि अगर भाई उसकी सक्सेस भी होती है या फेलियर भी होता है, आपको तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हाँ अगर बिल फेल हो गया यू विल लाइक नो इट्स नॉट माय ओपिनियन, कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये लोगों ने खुद ही किया, मुझे नहीं पूछा, दैट्स इट। सो अगर फेल और सक्सेस में पूरे दोनों दोनों मतलब चीजों में कैबिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेनी पड़ेगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अनदर टेबल ऑफ कंटेंट लाइक मिनिस्टर्स इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Besides the principle of collective responsibility, the principle of individual responsibility to each minister is to be a parliament also works. Every minister is responsible for every act of the officer of his department. Like हर एक मिनिस्टर का अपना ही डिपार्टमेंट होगा। अगर ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में यानी कि तुम कुछ कांड करते हो, तुम घपला करते हो एक डिपार्टमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल रेलवे को ले लेते हैं हम कि भाई हमारा रेलवे वाला मिनिस्टर है, उसके वो घपला करता है, तो इसमें वो पूरी कैबिनेट को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि खाया पिया उसने, कैबिनेट को पता भी नहीं था कि इसने ऐसे किया है। तो वो हो जाएगी उसकी इंडिविजुअल और उसके डिपार्टमेंट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। So it is the responsibility of minister to answer the question regarding the affair of his department in the parliament. The ministry is solely responsible. So solely या solely okay, and he cannot throw the responsibility of an official or other minister. Like जो भी उसने किया होगा भाई जुगाड़ अपना कितना भी खाया पिया होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी मिनिस्टर होगी, लाइक फॉर द रेलवे मिनिस्टर,
कि हाँ भाई उससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस सॉफ्टवेयर को लेके, ना कि किसी और डिपार्टमेंट से। पार्लियामेंट उसी से पूछेगा कि तूने क्या किया, कहाँ गया ये पैसा, कहाँ पे ये बिल पास हुआ था, मैंने इम्प्लीमेंट तो देखी नहीं। जब मिनिस्टर है वो अकेले ही रिस्पॉन्सिबल होगा, वो किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकता अनदर ऑफिशियल लाइक कैबिनेट पर कि दे आर नॉट अंडर द, बिकॉज दे सो टेकन आर नॉट अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि कलेक्टिव। कलेक्टिव यानी कि ग्रुप और टीम वर्क, इंडिविजुअल इज ओनली द वन पर्सन, जो करेगा वो वही भरेगा, but are under the individual responsibility of minority. The concept of individual responsibility has been explained by the Supreme Court in the case of Secretary Jaipur Development Authority versus Daulat Manjan. So now in this case, I held that each minister is responsible for the action, act and the policies. He is responsible and answerable to the people. Therefore, along with the principle of collective responsibility, the principle of individual responsibility should be there, because it is more positive in character that every minister should have personally held accountable to the legislature. ऐसा नहीं है कि एक करेगा तो सारी कैबिनेट भरेगी, ना भाई ऐसा नहीं है। तो कलेक्टिव प्रिंसिपल का दिया हुआ है कि आफ्टर द, जब एमपी की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है आफ्टर ओथ एंड सैलरी, we will talk about the principle of collective responsibility under article 75 subsection 3, but there is also a second responsibility, it is known as the minister's own individual responsibility, जिसमें जो है मतलब जो कर्म कांड जिस बंदे ने किए हैं वही भोगेगा, कोई और नहीं भोगेगा। बस यही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कहना चाहते थे कि नहीं, कि अगर तुम लोग खाया एक और भरे पांच, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इससे हमारे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहे, लाइक आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल स्पेस एक्सेट्रा। पार्लियामेंट उसी से क्वेश्चन पूछेगा कि भाई मैंने तेरे लिए इतना पैसा सैंक्शन किया था पर वहां पर रेलवे लाइन नहीं बनी, तूने वो पैसा कहाँ गया? तो दिस इज लाइक अ डिजास्टर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। वी नो दैट कितने करप्ट है हमारे यहाँ पे, बट स्टिल कुछ अच्छे मिनिस्टर्स भी हैं, लाइक मिस्टर गडकरी, लाइक रोड गडकरी, उन्होंने एक नया ही मतलब रिकॉर्ड बनाया है, जो सबसे लंबा रोड। आई मीन आई हैव जस्ट लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट लाइक दैट फॉर द, क्योंकि मैं थोड़े बहुत करंट अफेयर पढ़ती रहती हूँ, एंड देयर इज रियली वेरी much appreciable work from Yogi Adityanath also. But we also know that our country is facing a tough side, but not like in Afghanistan, like, but we are facing some majority minority communities between them. So for we will like that कि at the end I also want to tell you that कि collective principle responsibility और individual responsibility में बहुत बड़ा फर्क है। कलेक्टिव में पूरा कैबिनेट आ जाता है, जो भी है 5 बंदे, 6 बंदे, 10 बंदे, और इंडिविजुअल में वाला एक ही बंदा आएगा, जिसने खाया है वही भरेगा, वही जेल जाएगा, दैट्स इट। हम हमारे देश में काफी करप्ट नेता भी है, दे आर लाइक आई हैव टोल्ड इन सम माय पास्ट वीडियोस दैट कि 34% ने एडमिट किया है कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसा क्रिमिनल मर्डर ऑफेंस अगेंस्ट जो भी हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं, दे मोर मोर देन, तो नहीं मैं कहूंगी कि 34 इज मेयर अ गुड आई लाइक परसेंटेज कि हमारे पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैठे हुए हैं, जिन्होंने जो बात करते हैं राइट्स एंड वॉल की, वो खुद ही किसी के राइट्स को कर रहे हैं इन्फ्रेंच, किडनैपिंग ऑफेंसेस फॉर वुमेन एक्सेट्रा। सो एट द एंड this is the most important question for the HPU. I mean, I am telling from the past some exams, like मैंने देखा है कि इसमें ये क्वेश्चन आता है कि write note about deadlock and principle of collective responsibility. So I will explain the deadlock in my. Now, after discussing all that collective and individual, we will know that the at the end we know that कि भाई चाहे तुम कैसे भी हो, कैबिनेट में हो, अगर तुम कुछ भी गलत काम करोगे इंडिविजुअली विदाउट the मतलब informing the cabinet you are doing some illegal work,
So you are the one who is liable for that offense. Not all the cabinet कि उनको भुगतना पड़ेगा कि हाँ कि नहीं हमारा बंदा था हमारे ग्रुप से, नहीं, तुम उस टाइम में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटके इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाओगे। और ये ही टॉपिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने अलग कर दिया है कि जो करेगा वो भरेगा, दैट्स इट।